السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سٹی 42 شہر کی سب باتوں کے ساتھ میں ہوں مدثر اقبال اور میں ہوں ماہین سید۔ یہاں پر وقت ہوا ہے ہیڈ لائنز کا، لیکن اس سے پہلے ایک شارٹ بریک۔ ینگ ڈاکٹرز 13ویں روز بھی ہڑتال پر، وزیر اعلیٰ ہاؤس کے گھیراؤ کا اعلان۔ ادھر محکمہ صحت نے 454 وومن میڈیکل آفیسر سے ہڑتال کا حصہ نہ بننے کے لیے حلفیہ بیان کی شرط عائد کر دی۔ ڈاکٹرز کی ہڑتال سے خوار مریضوں کے لواحقین کے صبر کا پیمانہ لبریز، نیو ہاسپٹل میں مظاہرہ۔ ادھر سینئر ڈاکٹرز اور پروفیسرز نے نوجوان مسیحاؤں کو منانے کے لیے وزیر اعلیٰ سے کل تک کی مہلت مانگی۔ سید میٹھا ہسپتال کے ڈاکٹرز کا ہڑتال سے اظہار لا تعلقی، آؤٹ ڈور وارڈز میں مریضوں کا چیک اپ کیا۔ وزیر اعلیٰ نے علامہ اقبال روڈ گڑی شاہو کا افتتاح کیا، تعمیر میں تاخیر پر عوام سے معذرت کر لی۔ رنگ روڈ کی تحقیقاتی رپورٹ میں ڈمپر ڈرائیور ذمہ دار قرار، منصوبے کا کانٹریکٹر خالد رؤف تاحال زیر حراست۔ علامہ اقبال ایئرپورٹ پر لندن کے لیے بک کروائی گئی آم کی پیٹیوں سے کروڑوں روپے مالیت کی 5 کلو ہیروئن برآمد۔ مٹن روڈ کے تاجروں اور رہائشوں کے وفد کی کمشنر سے ملاقات، ڈی آر ٹی منصوبے پر تحفظات سے آگاہ کیا۔ ادھر گھوڑوں کا قبضہ ٹھکانے لگانے اور تانگہ مالکان کے خلاف کارروائی کے لیے حکمت عملی پر غور۔ سیشن کورٹ میں قیدی کی فائرنگ سے دوسرا قیدی ہلاک، پولیس کی جوابی فائرنگ سے حملہ آور بھی مارا گیا۔ جوڈیشل ڈیوٹی پر مامور 5 پولیس اہلکاروں کو معطل کر کے گرفتار کر لیا گیا۔ نیو راوی پل پر ماڈرن پولیس فورس کا افتتاح، سی سی پی او کا کہنا ہے کہ پولیس کی کارکردگی میں بہتری کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے۔ احتساب عدالت نے ماس ٹرانزٹ ریل کیس میں ملوث ملزمان شمشاد گلزار، شاہ نواز، افضال گلزار اور فرح شمشاد کو قید اور جرمانے کی سزائیں سنا دی۔ وکلا میں کمپیوٹر اور پرنٹر تقسیم کرنے کی تقریب، وزیر اعلیٰ کا ڈسٹرکٹ بار کے لیے 20 کروڑ روپے امداد دینے اور آشیانہ طرز پر ہاؤسنگ سوسائٹی بنانے کا اعلان۔ وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کا لاہور میں مصروف دن، مزار اقبال پر حاضری، جبکہ گورنر ہاؤس میں سینئر صحافیوں اور ڈیفنس میں سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی سے ملاقات کی۔ مسلم لیگ نون کے صدر میاں نواز شریف سے سابق وفاقی وزیر سردار علی نواز مہر کی ملاقات، سیاسی امور پر تبادلہ خیال۔ ملزم کو بھی تو ملتا ہے کچھ بولنے کا حق، پھر کیوں نہیں بیان ہمارا لکھا گیا؟ سبما کے زیر تمام سیمینار، سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی نے احساسات و جذبات کے اظہار کے لیے شاعری کا سہارا لے لیا۔ مالی سال کے آخری روز آر ٹی او میں ٹیکس گزاروں کا رش لگا رہا، دوسری جانب ریجنل ٹیکس آفس کے ملازمین نے ایوارڈ کی تقسیم غیر منصفانہ قرار دیتے ہوئے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ لاہور ٹرانسپورٹ کمپنی نے 29 لاکھ اور انفینٹری انجینئرنگ پرائیویٹ لمیٹڈ سے 50 لاکھ روپے کی ٹیکس وصولی۔ ادھر لیسکو بلال گنج سب ڈویژن نے بھی بلوں کی مد میں 20 لاکھ وصول کر لیے۔ یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے سینڈیکیٹ کا اجلاس، 245 کروڑ 60 لاکھ روپے کا بجٹ منظور۔ لبرٹی چوک میں مہنگائی، دہشت گردی اور توانائی بحران کے خلاف احتجاجی مظاہرہ، جبکہ رسول پارک کے رہائشی بھی 3 دن سے بجلی بندش پر سڑکوں پر آ گئے۔ سرکاری ملازمت دلوانے کا جھانسا دے کر بے روزگار افراد سے لاکھوں روپے بٹورنے والا شخص گرفتار کر لیا گیا۔ مسلم لیگ نون لاہور کی تنظیم سازی پرویز ملک اور خواجہ عمران نذیر نے پی پی 154 کے عہدیداران میں نوٹیفکیشن تقسیم کیے۔ غیر سرکاری تنظیم روزن اور پلان نے نوجوانوں کو درپیش مسائل سے متعلق تجزیاتی رپورٹ جاری کر دی۔ تقریب میں ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی رانا مسعود احمد خان کی شرکت۔
ہائی کورٹ بار میں پنجاب یونیورسٹی لاء کالج کے سابق پرنسپل شیخ امتیاز احمد کے اعزاز میں استقبالیہ، چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور دیگر ججز کی شرکت۔ ایف سی کالج یونیورسٹی کا 10واں کانوکیشن، 410 طلبہ میں ڈگریاں تقسیم، 3 طلبہ کو گولڈ میڈل سے بھی نوازا گیا۔ لاہور گرامر اسکول کے طلباء کا غیر سرکاری تنظیم پربت فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام چڑیا گھر کا دورہ، ماحولیات سے متعلق لوگوں کو آگاہی فراہم کی۔ ایشین ٹیسٹ کرکٹ ایسوسی ایشن کی تیسری سالانہ جنرل کونسل میں شرکت کے لیے بھارتی وفد لاہور پہنچ گیا۔ ادھر ہاٹ ویدر ڈان باسکو باسکٹ بال ٹورنامنٹ میں ڈیفنس نے فالکن کلب کو ہرا دیا۔ اور غیر معیاری فلموں نے سینما کا کاروبار تباہ کر دیا، بازار حسن میں 50 سال سے قائم ترنم سینما کی مسماری شروع کر دی گئی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ سرکاری ہسپتالوں کے آؤٹ ڈور 13ویں دن بھی بند رہے، مسلسل ہڑتال سے تنگ مریضوں نے بھی احتجاج کی راہ اپنا لی، جبکہ ینگ ڈاکٹرز نے طبلِ جنگ بجاتے ہوئے وزیر اعلیٰ ہاؤس کے گھیراؤ کا اعلان کر دیا ہے۔ دوسری طرف محکمہ صحت نے ہڑتال کو ناکام بنانے کے لیے بڑے پیمانے پر نئے ڈاکٹرز بھرتی کرنا شروع کر دیے ہیں۔ دیکھتے ہیں ظاہر چودھری کی رپورٹ۔ ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن پنجاب کی جانب سے سروس اسٹرکچر کا مطالبہ پورا نہ ہونے پر سرکاری اسپتالوں کے آؤٹ ڈور وارڈز میں ہڑتال کا سلسلہ 13 روز سے جاری ہے۔ ینگ ڈاکٹرز تمام تر سرکاری دباؤ کے باوجود ڈٹے ہوئے ہیں اور اب انہوں نے 5 جولائی کو 7 کلب روڈ پر وزیر اعلیٰ ہاؤس کے گھیراؤ کا اعلان کر دیا ہے۔ ادھر میو اسپتال میں آؤٹ ڈور کی بندش کے خلاف مریضوں اور ان کے لواحقین نے زبردست احتجاج کیا اور انسانی جانوں کو داؤ پر لگانے والے ڈاکٹروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ اس پیشے کا مین مقصد ہی یہی ہے کہ خدمت انسانیت، احترام آدمیت، کوئی یہاں کچھ بھی نہیں۔ 45 یا 48 کوئی کم پے نہیں ہے، اس کے باوجود یہ کرتے کیا ہیں؟ ہمارا مطلب کوئی چیک نہیں کرتا، کیا کرے، کہاں جائے، کسے سنائے؟ نہ بڑے ڈاکٹر آتے ہیں نہ چھوٹے آتے ہیں۔ ہمیں 15 دن ہو گئے، تھوڑے سے پیسے لے کے آئے تھے وہ بھی ختم ہو گئے ادھر کھانے میں۔ جس سرکاری اسپتال کا بھی رخ کریں او پی ڈی بند پڑے ہیں اور مریض خوار ہو رہے ہیں، لیکن شہر کا ایک اسپتال ایسا بھی ہے جہاں ڈاکٹر ہڑتال کی بجائے مسیحائی میں مصروف ہیں۔ گورنمنٹ صحت مٹھا اسپتال میں آؤٹ ڈور کے تمام شعبوں میں معمول کے مطابق کام جاری ہے اور مریضوں کا رش بھی بڑھ گیا ہے۔ بہت اچھا ٹریٹمنٹ ہوا ہے، میڈیسن بھی ملی ہے، ڈاکٹر نے بھی اچھے طریقے سے چیک کیا ہے۔ بہت اچھا ہوا ہے، سب کچھ بہت اچھا ہوا ہے، لیکن چیک اپ بھی ہوا ہے، سب کچھ بہت سہولت۔ میرے مطابق نزلہ زکام اور بخار تھا مجھے، میں دوائی بھی ملی ہے۔ محکمہ صحت نے سرکاری اسپتالوں میں ڈاکٹرز کی ہڑتال کا توڑ کرنے کے لیے 454 ویمن میڈیکل آفیسرز بھرتی کر لی ہیں، جبکہ 280 ڈاکٹرز کنٹریکٹ پر بھی رکھ لیے ہیں۔ ان سے حلف نامے بھی لکھوائے جا رہے ہیں کہ ہڑتال میں شرکت کی صورت میں ان کو ملازمت سے فارغ کر دیا جائے گا۔ کیمرہ مین کاشف بیگ کے ساتھ زاہد چودھری، سٹی 42۔ لاہور پریس کلب کے باہر ینگ سول سوسائٹی پاکستان کے زیر تمام ینگ ڈاکٹرز کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ عاطف ایوب میوں کی قیادت میں ہونے والے مظاہرے میں نوید علی بھٹی، ذوالفقار علی جٹ، ڈاکٹر فقیر حسین، فیصل بٹ اور اظہر حسین سمیت دیگر افراد نے شرکت کی۔ مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے عاطف ایوب میوں نے کہا کہ ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کی ہڑتال غیر قانونی ہے، قوم کے مسیحا سوداگر بن کر لاکھوں بیمار انسانوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر ینگ ڈاکٹرز نے ہڑتال ختم نہ کی تو 2 جولائی سے ینگ سول سوسائٹی کے ہزاروں کارکن مختلف اسپتالوں میں فرائض ادا کرنے کے لیے ڈاکٹرز کے ساتھ رضاکارانہ کام کریں گے۔ سیشن کورٹ میں پیشی پر آئے ایک ملزم نے فائرنگ کر کے دوسرے ملزم کو قتل کر دیا، حملہ آور بھی پولیس کی فائرنگ سے مارا گیا۔ فائرنگ سے عدالت میں بھگدڑ مچ گئی، جبکہ لاہور بار نے اس واقعے پر سوموار کو ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں شاہد سرپرائز رپورٹ میں۔ کوٹ لکھپت جیل سے قتل کے ملزم محمد شفقت کو پیشی پر سیشن کورٹ لایا گیا، اس کے ساتھ محمد اعظم نامی ملزم بھی پیشی پر آیا۔ بخشی خانے کے اندر اعظم نے فائرنگ کر کے محمد شفقت کو قتل کر دیا۔ پولیس اطلاع ملنے پر موقع پر پہنچی اور بخشی خانے میں بند دیگر قیدیوں کو نکالا۔ پولیس نے ملزم اعظم کو سرنڈر کرنے کے لیے کہا، لیکن اس نے انکار کر دیا، جس پر پولیس کو جوابی فائرنگ کرنا پڑی اور اس کی زد میں آ کر ملزم اعظم بھی موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ یہ دونوں پہلے اکٹھے دوست تھے، تو آج اس نے پتہ نہیں کس وجہ سے ان کی لڑائی ہوئی، تو اعظم نے اس کو پستول سے فائر کر کے مار دیا، تو جو اعظم ہے وہ ڈرانے پولیس مقابلہ ہلاک ہو گیا۔ شواہد اکٹھے کرنے کے بعد دونوں قیدیوں کی لاشیں مردہ خانے بھجوا دی گئیں، جبکہ بخشی خانے میں موجود قیدیوں نے الزام عائد کیا کہ اعظم کو پسٹل SHO بشیر نیازی نے کپڑے میں لپیٹ کر دیا تھا اور شفقت کے قتل کے بعد ملزم کو بھی فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا۔
बशीर नियाजी और 5-7 मुलाजिम आए हैं, इंस्पेक्टर बशीर खान नियाजी, उसने रुमाल में पिस्टल और गोलियां एक अदद मैगजीन पे वो अंदर दी है। 5 मिनट बाद ये गवाह हो गया। फायरिंग की वजह से सेशन कोर्ट में भगदड़ मच गई और पुलिस की भारी नफरी तलब कर ली गई। सदर लाहौर बार चौधरी जुल्फकार ने नाकी सिक्योरिटी पर पीर के रोज हड़ताल का ऐलान कर दिया है। ऐसे वाकयात की जो है इंक्वायरी हाई कोर्ट का जज करे और आइंदा से ऐसे वाकयात का सदेबाब हो। दूसरी ये है कि हमने मंडे वाले रोज पीर को लाहौर बार ने अभी हंगामी इजलास करके ये तय किया कि हम उस रोज मुकम्मल हड़ताल करेंगे। कैदियों को सेशन कोर्ट पेशी पर लाने वाले एएसआई मंजूर अहमद समेत 5 एहलकारों को इस्लामपुरा पुलिस ने गफलत बरतने पर गिरफ्तार कर लिया, जबकि एसपी हेडक्वार्टर हसन मुश्ताक सुखेरा ने उन्हें मुअत्तल कर दिया है। कैमरामैन मलिक जवेद और साथी रिपोर्टर असद शाही और शहीन अतीक के हमरा शाहिद सिप्रा, सिटी 42। आम की पेटियों की आड़ में 5 किलोग्राम हेरोइन लंदन स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। कस्टम्स हुकाम ने अलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर PIA एक्सपोर्ट शीट से 5 करोड़ रुपए मालियत की हेरोइन पकड़ ली। कस्टम हुकाम के मुताबिक PIA एक्सपोर्ट शेड में मैक्स एक्सपोर्ट सर्विसेज मॉडल टाउन की जानिब से आम की 391 पेटियां लंदन भिजवाने के लिए बुक करवाई गई। कार्गो तैयारे में वजन ज्यादा होने की वजह से आमों से भरी पेटियां दोबारा बाहर निकाली गई तो एक पेटी गिनती में ज्यादा निकली। शक गुजरने पर तलाशी ली गई तो इजाफी पेटी से 5 किलोग्राम हेरोइन बरामद हुई। सुपरिटेंडेंट कस्टम दलमीर अहमद मलिक के मुताबिक इस हेरोइन की इंटरनेशनल मार्केट में मालियत 5 करोड़ रुपए है। कस्टम्स हुकाम का कहना है कि हेरोइन कब्जे में लेकर FIR दर्ज कर ली गई है और हेरोइन बुक कराने वाले स्मगलर तक पहुंचने के लिए तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। पुलिस में रहना है तो तोंद कम करनी पड़ेगी। थानेदारों के बाद एहलकारों और एलीट फोर्स के जवानों को भी तोंदे कम करने का हुक्म दे दिया गया है। हुक्म की तकमील में शेर जवानों ने दंड बैठकें शुरू कर दी हैं। मजीद तफसीलात बता रहे हैं वक़ास अहमद इस रिपोर्ट में। अभी थानेदारों की थानेदारी पर मंडलाते खतरात खत्म नहीं हुए थे जब पंजाब पुलिस के सरबराह की जानिब से कांस्टेबल्स और एलीट फोर्स के एहलकारों के लिए भी तोंदे कम करने का हुक्मनामा जारी कर दिया गया। इधर सरबराह का हुक्म आया, उधर कुर्बान लाइन में मोटी तोंदों के मालिक एहलकारों के लिए रिफ्रेशर कोर्स का एहतमाम भी हो गया। ये फिजिकली तौर पे थोड़े अनफिट हो गए थे, इनके पेट बढ़ गए थे, इनके म्यार के काबिल नहीं रहते। भाई जी पंजाब साहब जो हमारे महकमे के सरबराह आला साहब उन्होंने मीटिंग करके एक रिफ्रेशर कोर्स मुनक्कद फरमाया। जिस्म को झुलसा देने वाली धूप और खुले मैदान में वर्जिश करना भला किससे अच्छा लगता है। कुछ एहलकारों ने तो कोर्स के आगाज पर अफसराने बाला की खूब तारीफ की और बाद ने तो सच कह ही दिया। जनाब ड्यूटी भी 12 घंटे रात करी दी है, सवेरे जनाब लिया मसला बन गया जनाब लिए ऑफिसर साहबान वास्ते है जेडे बड़े अंदर जनाब है ने बहुत अच्छी बात है। इसमें हमारा फायदा है कि IG साहब का हमारी तरफ से शुक्रिया है। काफी हार्ड ट्रेनिंग दे रहे हैं हमें उस्ताद साहब। मर्द एहलकारों के साथ साथ एलीट फोर्स की लेडी कांस्टेबल्स भी अपने सिपा सलार के हुक्म पर लब्बैक कहते हुए वर्जिशों में मसरूफ है। हमें 8-9 साल हो गए हैं इस कोर्स को किए हुए। जिस तरह मेल तैयार किए गए हैं दहशतगर्दों के लिए और VIPs की हिफाजत के लिए, उसी तरह हमें ट्रेन किया गया। तोंदे कम करने के लिए डंड बैठ के मारने वाले एहलकारों को उनके साथी बड़े इन्हमाक से देखते रहे और महजूज होते रहे। एहलकारों का कहना है कि वर्जिश करने में इन्हें मुश्किलात तो पेश आ रही हैं, ताहम काफी अरसे बाद अपने आप को चुस्त और तवाना भी महसूस कर रहे हैं। कैमरामैन सजाद अहमद के साथ वकास अहमद, सिटी 42। बुलेटिन में मजीद खबरें भी होंगी लेकिन एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए सिटी 42। वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अलामा इकबाल रोड का इफ्तिताह कर दिया। मंसूबे की ताखीर से तकमील पर उन्होंने अहले इलाका से मुआसरत भी की। अल्लामा इकबाल रोड की इफ्तिताही तकरीब के मौके पर अरकान कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक और परवेज मलिक, रुकन सूबाई असम्बली मोहसिन लतीफ, कमिश्नर लाहौर जवाद रफीक मलिक, DCO नूरुल अमीन मैंगल, मुस्लिम लीगी रहनुमा कर्नल रिटायर्ड मुबशिर जावेद, अताउल्लाह भट्ट और मियां मोहम्मद अली समेत दीगर भी मौजूद थे। इफ्तिताही तकरीब जलसे की शक्ल इख्तियार कर गई और वज़ीर आला शहबाज शरीफ ने अपने खिताब में कहा कि 70 करोड़ की लागत से मुकम्मल होने वाला यह मनसूबा अहले इलाका के लिए सहूलत का बायस साबित होगा। वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सूबे भर के डिस्ट्रिक्ट बार्स के लिए 20 करोड़ रुपए इमदाद देने और वकला के लिए आशियाना तर्ज पर हाउसिंग सोसाइटी बनाने का ऐलान किया है। पंजाब हुकूमत की जानिब से सूबे की 111 तहसीलों की बार काउंसिल्स में IT कैपेसिटी बिल्डिंग के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया।
अलहमरा हॉल में होने वाली तकरीब के मेहमान खसूसी वज़ीर आला मोहम्मद शहबाज शरीफ थे। उनके अलावा वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह, सीनियर मशीर सरदार जुल्फ़िकार अली खोसा, MNA नसीर अहमद भुट्टा, डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली राना मशहूद अहमद खान, खलील तारिक सिंधु, सबा सादिक, जाहिद हामिद और गुलाम अब्बास समेत डिस्ट्रिक्ट वार्ड के अहदेदारान और वकला नुमाइंदों ने शिरकत की। तकरीब में पंजाब हुकूमत की जानिब से 111 तहसीलों की वार्ड में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फरोग के लिए कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर्स और 1 साल तक इंटरनेट की मुफ्त सहूलत फराहम करने का ऐलान किया गया। लिटन रोड के ताजरों और रिहायशों के वफ्द ने कमिश्नर जवाद रफीक मलिक से मुलाकात की और रैप्ड बस ट्रांजिट मंसूबे पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। कमिश्नर ऑफिस में जवाद रफीक मलिक की ज़ेर सदारत इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें MNA बिलाल यासीन, MPS महर इश्तियाक और आजासम शरीफ, DCO नूर लमीन महंगल, DG LD आहत खान चीमा, ACCT सायरा उमर, TMO दाता टाउन शाहिद इकबाल, सईद अख्तर मजीद, सईद अख्तर, माजिद रशीद समेत लिटन रोड के ताजरों और रिहायशों के नुमाइंदे शरीक हुए। उन्होंने रैप्ड बस मंसूबे पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात पेश किए। उन्होंने बताया कि रैप्ड बस मंसूबे के बाद पेट्रोल पंप के लिए मंजूर शुदा ज़मीन और ब्रिज स्टोन प्लाजे मुतासर हो रहे हैं। बिल्डिंग्स के साथ गहरी खुदाई की जा रही है, जिससे इमारतों की बुनियादों को नुकसान पहुँचने का खदशा है। कमिश्नर ने DG LDA और टीपा अफसरान को हिदायत की कि मौके पर जाकर ताजरों और रिहायशों के मसाइल सुने जाएं और मुमकिन हो तो मंसूबे पर नज़रसानी की जाए। एहतसाब अदालत ने मास ट्रांजिट रेल केस में मुलव्वस शमशाद गुलजार, शाहनवाज, अफजाल गुलजार और फराह शमशाद को कैद और जुर्माने की सजाएं सुना दी। नए पंजाब ने मास रेल ट्रांजिट में 40 करोड़ रुपए की खुर्द-बुर्द के इल्जाम में शमशाद गुलजार, अफजाल गुलजार, फराह शमशाद, शाहनवाज, दानिश कामरान, मोहम्मद आजम और ताहिर शराजी के खिलाफ 2009 में एहतसाब अदालत में रेफरेंस भेजा था। 82 गवाहों के बयानात और वकला के दलाल सुनने के बाद अदालत ने मुलजिम शमशाद गुलजार को 14 साल कैद और 2 करोड़ 61 लाख रुपए जुर्माना, शाहनवाज को 7 साल कैद, 14 करोड़ रुपए जुर्माना, अफजाल गुलजार को 12 और फराह शमशाद को 10 साल कैद के साथ साथ दोनों की जायदादें जब्त करने के अहकाम जारी किए हैं। अदालत ने 4 मुल्जिमान दानिश कामरान, मोहम्मद आजम और ताहिर शराजी को बरी कर दिया। DCO नूर लमीन महंगल ने इंतजामिया को अशिया ख़ुरोनोश की कीमतें मार्केट के हक़ाइक़ के मुताबिक मुकर्रर करने की हिदायत की है, जबकि दुकानदारों से अपील की है कि वह रमज़ानुल मुबारक में अपनी शरह मुनाफा कम करके सवाब कमाएं। DO ऑफिस नादर हॉल में नूर लमीन महंगल की ज़ेर सदारत अशिया ज़रूरिया के नरखों पर नज़रसानी के लिए इजलास हुआ, जिसमें अरकान सूबाई असम्बली ख्वाजा इमरान नज़ीर और चौधरी शहबाज, मॉल रोड ट्रेडर्स एसोसिएशन के सदर सुहेल भट्ट, ADCG मुशर्रफ जबी, तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, DO मॉनिटरिंग, DO फूड, अकबरी मंडी और करियाना मर्चेंट्स एसोसिएशन के अहदेदार शरीक हुए। CCP असम तरीन ने कहा है कि डॉक्टरों से निपटने के लिए लाहौर पुलिस ने हिकमत अमली तैयार कर ली है। जो ही आला हुकाम ने हुक्म मिला कार्रवाई शुरू कर देंगे। न्यू रावी पुल पर बनाई गई मॉडर्न पुलिस पोस्ट के इफ्तिताह के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए CCP लाहौर असम तरीन ने कहा कि हड़ताली डॉक्टरों से निपटने के लिए आला हुकाम से अहकामात मिलते ही कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। CCP ने कहा कि सेशन कोर्ट में असलहा, वकला और पुलिस के दरमियान तसादुम के दौरान पहुंचाया गया था। उन्होंने कहा कि शहर में पेट्रोलिंग बेहतर बनाने के लिए पुलिस की तमाम गाड़ियों में ट्रैकर लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा शहर की अहम शाहराहों पर CCTV कैमरे नस्ब करने पर भी गौर किया जा रहा है। FC कॉलेज यूनिवर्सिटी के 10वें कन्वोकेशन में 410 तलबा और तालिबात को असनाद दी गई। डायरेक्टर डॉक्टर पीटर H. आमाकोस ने रिटायरमेंट से कबल तलबा से अपना आखिरी खिताब किया। मजीद बता रहे हैं अकमल सोमरो इस रिपोर्ट में। FC कॉलेज यूनिवर्सिटी के 10वें कॉन्वोकेशन में रेक्टर डॉक्टर पीटर H. आर्माकोस, एग्जीक्यूटिव वाइस रेक्टर डॉक्टर जेम्स तैबी, एग्जीक्यूटिव वाइस रेक्टर डॉक्टर CJ दुबाश, रजिस्ट्रार डॉक्टर हामिद सईद, ग्रेजुएट तलबा और तालिबात और उनके वालिदैन ने शिरकत की। कॉन्वोकेशन में BA के 89, BSc के 222, BSc कंप्यूटर इंजीनियरिंग के 16 और पोस्ट ग्रेजुएट के 25 तलबा और तालिबात में डिग्रियां तकसीम की गईं। फिजिक्स के तालिब इल्म मोहम्मद अदील ने यूनिवर्सिटी में मजमूई तौर पर पहली पोजीशन हासिल की, जबकि जवेरिया यूनुस अब्बासी, आयशा बशीर, रिदा हामिद, सैयद हसन रजा, रहीम अमीन, सैयद अदनान अली और साद अफजल को गोल्ड मेडल से नवाजा गया। FC कॉलेज के अंदर हमारा एक्सपीरियंस बहुत जबरदस्त रहा। FC कॉलेज के 4 साल ऐसे लगता है कि जैसे इंसान ने 4 पल गुजारे। I graduated in BS Economics and I enjoyed a lot in FC. I had a great time over here and I did a hangouts with my friends. डिग्रियां वसूल करने वाले तलबा के वालिदैन भी बेहद खुश थे। उनका कहना है कि उन्होंने औलाद को आला तालीम दिलाने का फर्ज अदा कर दिया है। मोहम्मद फतह को BSc ऑनर की डिग्री मिली है, मुझे बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। बहुत अच्छा लम्हा है।
बहुत उसने मेहनत की है एंड ही हैज अचीव्ड, वो डिजर्व करता था। डॉक्टर पीटर एच आर्मा कोस्ट की रिटायरमेंट के बाद 2 जुलाई को डॉक्टर जेम्स टैबी रेक्टर का चार्ज संभाल लेंगे। तलबा का कहना है कि एफसी कॉलेज से डिग्री हासिल करके उनका ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो गया है। अब वो अपनी सलाहियतों को बरोकार लाकर अमली मैदान में मुल्क की बेहतरी के लिए किरदार अदा करेंगे। कैमरामैन राना अयाज के साथ अकमल सोमरो, सिटी 42, एफसी कॉलेज। बुलेटिन में कुछ मजीद अहम खबरों से भी आपको आगाह किया जाएगा। फिल वक्त लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज अशरफ की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। इजलास में सदर आसिफ अली जरदारी की हिमायत और साबिक वज़ीर-ए-आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को खैरात तहसीन पेश करने के लिए करारदादें मंजूर की गईं। गवर्नर हाउस में होने वाले इस इजलास में गवर्नर पंजाब सरदार मोहम्मद लतीफ खान खोसा, अपोजिशन लीडर राजा रियाज अहमद खान, पार्लिमानी लीडर मेजर रिटायर्ड जुल्फिकार गोंदल, डिप्टी पार्लिमानी लीडर शौकत बसरा, पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर इम्तियाज सदर बराइज, अरकान सूबाई असम्बली कासिम ज़िया, फायजा मलिक, उज़मा बुखारी, साजिदा मीर, अथर गोरचानी समेत दीगर ने शिरकत की। अरकान असम्बली ने वज़ीर आज़म से सरकारी मुलाजमतों और असलहा लाइसेंस के कोटे और फंड की दरख्वास्त की। राजा परवेज अशरफ ने अपने खिताब में कहा कि वह फौरी तौर पर अरकान असम्बली के लिए मरासी पैकेज नहीं दे सकते, ताहम 1 हफ्ते में वो होमवर्क मुकम्मल करके जायज मुतालबात के बारे में ऐलान करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज अशरफ ने अल्लामा इकबाल के मज़ार पर हाजिरी दी, फातह खानी की और मेहमानों के लिए रखी गई किताब में अपने तासुरात कलम बंद किए। वज़ीर-ए-आज़म की आमद से कबल सिक्योरिटी के पेश नजर बादशाही मस्जिद, शाही कला और हजूरी बाग को 2 घंटे कबल ही आम शहरियों के लिए बंद कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज अशरफ ने शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के मज़ार पर हाजिरी दी और फातह खानी के बाद मेहमानों के लिए रखी गई किताब में अपने तासुरात कलम बंद किए। वज़ीर-ए-आज़म की सिक्योरिटी के बायस आजादी चौक और 2 मोरिया पुल समेत दीगर शाहराहों पर ट्रैफिक जाम भी देखने में आई। वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज अशरफ साबिक वज़ीर-ए-आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी से मिलने उनके घर गए। दोनों रहनुमा 1 घंटे से ज़ायद सराइकी जुबान में गुफ्तगू करते रहे। वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज अशरफ गवर्नर पंजाब के हमरा डिफेंस में सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की रिहाइशगाह गए, जहां साबिक वज़ीर-ए-आज़म और चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड सैयद आसिफ हाशमी ने उनका इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने वज़ीर-ए-आज़म को शबनम शकील के नज़्म भी सुनाई, जिसके बाद गवर्नर और आसिफ हाशमी समेत सब अफराद इस नज़्म पर तबादला ख्याल करते रहे। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए राजा परवेज अशरफ का कहना था कि यूसुफ रज़ा गिलानी पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा भी हैं और पार्टी हमेशा उनसे रहनुमाई लेती रहेगी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने अपने एहसासात और जज्बात के इजहार के लिए शायरी का सहारा ले लिया है। सैफमा के ज़ेर-ए-एहतमाम सेमिनार में अपने खिताब के अख्ताम में शेरी पैरान में वो कुछ कह गए जो नसर में बयान करना शायद उन्होंने मुनासिब न समझा। इस बारे में मज़ीद जानते हैं अजहर अली खान की रिपोर्ट में। आवारी होटल में सैफमा ने इदारों के तसादुम और जमहूरियत के तसलसल के मौजू पर सेमिनार का इनेकाद किया, जिसकी शुरका से खिताब करते हुए साबिक वज़ीर-ए-आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि आइंदा इंतखाबात में किसी भी पार्टी के लिए वाज़े अक्सरियत से हुकूमत बनाना मुश्किल है, मुस्तकबिल में भी मखलूत हुकूमतें ही बनेंगी। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत का सबसे बड़ा कारनामा आइन की बहाली है। इदारों का एहतराम न होता तो आइन बहाल न करते। अदलिया के एहतराम और जमहूरियत के तसलसल के लिए हर फैसला तस्लीम किया। किसी वज़ीर-ए-आज़म पर यह तलवार नहीं लटकती रहनी चाहिए कि वो कब तक बरसरे इख्तिदार रहेगा। हम तो गवाह हैं कि गलत था, लिखा गया, क्या फैसला हुआ था और क्या लिखा गया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने शेरी पैराए में ही सादा लोही का दामन थामे बात कुछ इस अंदाज में जारी रखी। हम चुप रहे कि फैसला सारा था तयशुदा, यानी जो मुद्दई ने लिखाया लिखा गया। मकतूबे गम हमारा पढ़ा ही नहीं गया, वरना तो इसमें था हाल सारा लिखा गया। ये कैसी मुनसफी थी कि मुनसफ के सामने झूठी शहादतों को भी सच्चा लिखा गया। सेमिनार में एमकेएम के रुकने कौमी असेंबली वसीम अख्तर, सीनियर सहाफी आरिफ निजामी, एहसान वाई एडवोकेट, खालिद अहमद, इम्तियाज आलम और ज़ियाउद्दीन ने भी शिरकत की। कैमरामैन आतिफ यासीन के हमरा अजहर अली खान, सिटी 42।
لاہور ہائی کورٹ بار میں پنجاب یونیورسٹی لا کالج کے سابق پرنسپل شیخ امتیاز احمد کے اعزاز میں استقبالیہ دیا گیا۔ استقبالیے میں چیف جسٹس عمر خان بندیال سمیت ہائی کورٹ کے ججز نے شرکت کی۔ لاہور ہائی کورٹ بار کے کراچی شہداء ہال میں پنجاب یونیورسٹی لا کالج کے پرنسپل شیخ امتیاز احمد کے اعزاز میں استقبالیہ دیا گیا، جس میں چیف جسٹس عمر خان بندیال، جسٹس صغیر احمد قادری، جسٹس شیخ نجم الحسن، جسٹس عباد الرحمان لودھی، جسٹس شجاعت علی خان، جسٹس خالد محمود خان، جسٹس سردار شمیم احمد خان، جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس چودھری محمد یونس، جسٹس افتخار احمد، جسٹس شاہد وحید، جسٹس امین الدین، جسٹس علی باقر نجفی، جسٹس محمد امیر بھٹی، جسٹس عبدالسمیع خان اور جسٹس مامون الرشید شیخ نے شرکت کی۔ بلیٹن میں مزید خبریں بھی ہوں گی، لیکن ایک بریک کے بعد دیکھتے رہیے سٹی 42۔ ریجنل ٹیکس آفس کی ٹیم نے ود ہولڈنگ ٹیکس کی عدم ادائیگی پر انفینٹی انجینئرنگ پرائیویٹ لمیٹڈ کے 10 بینک اکاؤنٹ منجمد کر کے 50 لاکھ روپے کی ریکوری کر لی۔ RTO ذرائع کے مطابق انفینٹی انجینئرنگ پرائیویٹ لمیٹڈ پر ود ہولڈنگ ٹیکس کی مد میں 83 لاکھ روپے واجب الادا تھے۔ انفینٹی انجینئرنگ کو متعدد مرتبہ نوٹسز بھجوائے گئے، تاہم ٹیکس ادا نہیں کیا گیا۔ اس پر RTO کی ریکوری ٹیم نے کارروائی کرتے ہوئے انفینٹی انجینئرنگ پرائیویٹ لمیٹڈ کے شہر کے مختلف بینکس میں موجود 10 اکاؤنٹ منجمد کر کے 50 لاکھ روپے ٹیکس وصول کر دیا۔ RTO حکام کا کہنا ہے کہ بقیہ رقم بھی جلد وصول کر لی جائے گی۔ سبززار کے علاقے رسول پاک کے رہائشیوں نے 3 دن سے بجلی بند ہونے پر ملتان روڈ بلاک کر کے شدید احتجاج کیا، جس سے ٹریفک کا نظام درہم بھرم ہو گیا۔ ایوان ٹاؤن رسول پارک کے رہائشیوں نے 3 دن سے بجلی نہ آنے پر ملتان روڈ کو ٹائر جلا کر بلاک کر دیا اور لیسکو کے خلاف شدید احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین کے مطابق بجلی ٹرانسفارمر خراب ہونے کی وجہ سے بند پڑی ہے، جس کی لیسکو حکام کو متعدد بار اطلاع دی گئی، مگر کسی نے ان کی نہیں سنی۔ مظاہرین کے احتجاج سے سڑک بند ہو گئی اور گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ احتجاج کی اطلاع ملنے پر پولیس موقع پر پہنچ گئی اور مذاکرات کے بعد مظاہرین منتشر ہو گئے۔ مسلم لیگ نون لاہور کے صدر پرویز ملک اور جنرل سیکرٹری خواجہ عمران نذیر نے حلقہ PP 154 کے عہدیداروں میں نوٹیفکیشن تقسیم کیے۔ امام عالم روڈ پر واقع میموریز ریسٹورنٹ میں حلقہ PP 154 کے عہدیداروں کو ان کے نوٹیفکیشن دینے کے حوالے سے تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں پرویز ملک اور خواجہ عمران نذیر نے شرکت کی۔ اس موقع پر MNA چودھری نصیر احمد بھٹا، رانا شوکت، ملک امانت ایاز احمد بوبی، نوشیروان نیازی، وحید عباسی اور ارشد بھٹا سمیت دیگر افراد بھی موجود تھے۔ تقریب میں صدر حلقہ PP 154 میاں سلیم، جنرل سیکرٹری شیخ طاہر حنیف، میاں افضل، معین بٹ، نعیم پہلوان، شہباز جعفری، شاہد بٹ، رانا کاشف گلزار، نعیم احمد خان، خلیل نثار، ڈاکٹر مختار، حاجی اسلم اور ڈاکٹر لیاقت کو ان کے عہدوں کے نوٹیفکیشن تقسیم کیے گئے۔ مسلم لیگ نون کے صدر میاں محمد نواز شریف نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت کی کرپشن اور غلط ترجیحات کے باعث ملک کی معیشت دگرگوں اور عوام پریشان ہے۔ سابق وفاقی وزیر سردار علی نواز مہر نے مسلم لیگ نون کے صدر میاں محمد نواز شریف سے جاتی عمرہ میں ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ اس موقع پر مسلم لیگ نون کے رہنما امداد چانڈیو بھی موجود تھے۔ میاں نواز شریف نے کہا کہ سندھ کے عوام نے انہیں جس قدر عزت اور پیار دیا ہے وہ کبھی بھول نہیں سکتے۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کے پاس ملکی مسائل کے حل کے لیے تجربہ کار ٹیم ہے جو ملک کو بحران سے باہر نکالنے کا عزم رکھتی ہے۔ نائب وزیر اعظم چودھری پرویز الہی نے کہا ہے کہ حکومت میں شمولیت کا مقصد عوامی مسائل کا حل ہے۔ توانائی بحران کے خاتمے کے لیے صدر اور وزیر اعظم سے مسلسل رابطے میں ہیں۔ مسلم نقاب کے سینئر مرکزی رہنما اور نائب وزیر اعظم چودھری پرویز الہی سے ان کی رہائش گاہ پر پنجاب کے مختلف اضلاع کے منتخب عوامی نمائندوں، سابق ناظمین، ممتاز وکلاء، صنعتکاروں، تاجروں، ایپکا اور دیگر تنظیموں کے نمائندہ وفود اور سرکاری افسران نے الگ الگ ملاقاتیں کی۔ انہوں نے چودھری پرویز الہی کو نائب وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی، پھولوں کے ہار پہنائے اور گلدستے پیش کیے۔ ناظرین، ایک اہم اور افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ گڑی شاہو کے علاقے علامہ اقبال روڈ پر شوکت خانم کینسر میموریل ہاسپٹل کے کلیکشن سینٹر میں ڈکیتی کی واردات ہوئی، جس کے نتیجے میں مزاحمت پر سیکیورٹی گارڈ کو قتل کر دیا گیا ہے۔ یہ تمام تر واقعہ کس طریقے سے پیش آیا، اس حوالے سے ہمیں مزید اپڈیٹ کریں گے اسد صاحب۔ جیسے صاحب بتائیے گا کہ یہ افسوسناک واقعہ کس طریقے سے پیش آیا ہے؟ جی، یہ کچھ ہی دیر پہلے گڑی چوک کے علاقے علامہ اقبال روڈ پر شوکت خانم کلیکشن سینٹر ہے، جہاں پہ 3 ڈاکو آئے ہیں، جنہوں نے جب اندر گھس کر گن پوائنٹ پر رقم چھیننے کی کوشش کی تو سیکورٹی گارڈ نے ان پر رائفل تان لی، جس پہ ڈاکوؤں نے فائرنگ کر دی۔ سیکورٹی گارڈ محمد منظور موقع پر ہی ہلاک ہو گیا، جبکہ ڈاکو
फायरिंग करते हुए फरार होने में कामयाब हो गए हैं। पुलिस जैको ओवर 40 था डाकू जो है फरार हो चुके हैं और मोहम्मद मंजूर की लाश जो है वो पोस्टमार्टम के लिए डेड हाउस भिजवाई जा रही है। जी बहुत शुक्रिया ससाई, हमें इस हवाले से अपडेट करने के लिए। गढ़ी शाहू अल्लामा इकबाल रोड पर वाक़ शौकत खानम कलेक्शन सेंटर पर डकैती की वारदात के हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा था, जिसमें सिक्योरिटी गार्ड की मुज़ाहमत पर उसको कत्ल कर दिया गया है डाकुओं की जानिब से। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर के ज़रिए तमाम फन और सकाफत के फरोग पर सेमिनार का एहतमाम किया गया। अदाकारा बहार बेगम का कहना है कि दोगलेपन और मुनाफकत का खात्मा कर दिया जाए तो फिल्म इंडस्ट्री दोबारा तरक्की कर सकती है। मजीद उनका क्या कहना है जानते हैं इमन ताहिर की रिपोर्ट में। गद्दाफी स्टेडियम में वाक़ई पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर के ज़रिए तमाम फन और सकाफत के फरोग पर होने वाले सेमिनार में सेनेटर परवेज रशीद, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पंजाब मुहिउद्दीन वानी, डायरेक्टर जनरल पिलाक मलिक मोहम्मद अशरफ अवान, फिल्म इंडस्ट्री के मारूफ डायरेक्टर सैयद नूर, मारूफ थिएटर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर उस्मान पीरजादा, अदाकारा बहार बेगम, डॉक्टर एजाज अनवर और शाहनवाज जैदी समेत मुख्तलिफ शोबा हर जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। तकरीर से खिताब करते हुए सैयद नूर ने कहा कि नए अदाकारों को आगे बढ़ने के मौके फराहम करने और पुराने फनकारों को मौसी तौर पर मुस्तहकम करने की जरूरत है। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसे लोगों की, ऐसे फनकारों की मदद के लिए एक इदारा बन जाए, एक हिडन फंड रख दिया जाए जो खामोशी के साथ ऐसे फनकारों की मदद करता है। तकरीर से खिताब करते हुए सीनियर अदाकारा बहार बेगम ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री की बहाली के लिए जरूरी है कि दोगलेपन और मुनाफिकत का खात्मा किया जाए। हम लोगों के अंदर से जब तक बुग़्ज़, दोगलापन ये चीज खत्म नहीं होगी, हम रिवाइवल नहीं कर सकते। तकरीर से खिताब करते हुए थिएटर के मारूफ प्रोड्यूसर और डायरेक्टर उस्मान पीरजादा ने कहा कि मजहब और सकाफत दो मुख्तलिफ चीजें हैं, लेकिन अपनी अपनी जगह बहुत अहमियत के हामिल हैं और दोनों को साथ लेकर चलना चाहिए। कैमरामैन आतिफ यासीन के साथ इमन ताहिर, सिटी 42। अल्लामा इकबाल टाउन मेन बुलेवार्ड मून मार्केट में डोसे बेकर्स की ब्रांच को 1 साल मुकम्मल होने पर सालगिरह का एहतमाम किया गया। साबिक जिला नाज़िम मियां आमिर महमूद ने केक काटा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अल्लामा इकबाल टाउन मेन बुलेवार्ड मून मार्केट में डोसे बेकर्स की सालगिरह की तकरीब में जीएम प्रोडक्शन मजहर नकवी, सीओओ अमजद नियाज, साबिक सूबाई वज़ीर मियां असलम इकबाल, सलमान गनी, कॉर्पोरेट डायरेक्टर पंजाब हारून पाशा, यूसी 103 के साबिक नाज़िम मियां मोहम्मद नईम, ब्रांच मैनेजर मोहम्मद वकास, यूसी 107 के साबिक नाज़िम अफीर और डोसे बेकर्स के अमले ने शिरकत की। इस मौके पर डोसे बेकर्स इंतजामिया ने अपनी मसनूआत पर 10% डिस्काउंट का भी ऐलान किया। जीएम प्रोडक्शन मजहर नकवी का कहना है कि डोसे बेकर्स की तमाम मसनूआत मियारी और हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों के मुताबिक हैं, जबकि सार्फिन का कहना है कि इन्हीं डोसे बेकर्स की वजह से काफी सहूलत मिली है। इंशाल्लाह ताला हम अपने मैक्सिमम जो है प्रोडक्ट, जिसमें फ्रेशिंग केक्स हैं, पिज़्ज़ा है, स्नैक्स आइटम है, और इंशाल्लाह तक पूरे लाहौर में किसी के पास अवेलेबल नहीं जो प्रोडक्ट हम इंशाल्लाह अपने सार्फिन को पेश कर रहे हैं। तमाम चीज़ें बहुत मेयारी हैं और इनकी बेकरी बहुत अच्छी है। ये हमारे इलाके में है, हमें दूर नहीं जाना पड़ता। बड़ी अच्छी स्टैंडर्ड की सारी चीजें यहाँ अवेलेबल है। डोसे बेकर्स इंतजामिया का कहना है कि इशिया की तैयारी के दौरान मेयार पर कभी समझौता नहीं किया जाता। कैमरामैन इमरान सदीकी के साथ सज्जाद बुटा, सिटी 42। बुलेटिन में कुछ मजीद अहम खबरों से भी आपको आगाह किया जाएगा। फिल वक्त लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। अदालती कार्रवाइयों के बारे में कुछ खबरें होंगी सिटी अदालत में। पंजाब बार काउंसिल की जानिब से दोबारा हड़ताल की कॉल पर वकला ने अदालतों का बायकॉट किया। वकला की बार बार हड़ताल के बायस साइलिन के मुकदमात मुतासर होने लगे हैं। वाइस चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल मलिक गुलाम अब्बास निस्वाना की जानिब से सूबे भर की अदालतों में मुकम्मल हड़ताल की कॉल दी गई। हड़ताल की कॉल मेंबर पंजाब बार मजहरुल्लाह के बेटे से सरगोदा पुलिस के नारवा सलूक के बायस दी गई। वकला की बार बार हड़ताल के बायस न सिर्फ मुकदमात की समाअत मुतासर हो रही है, बल्कि दूर दराज से अदालतों में आने वाले साइलिन को भी शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वकला की हड़ताल के बायस जेलों में बंद ऐसे मुलाजिमीन के लवाहिकीन भी वकला के हड़ताल के बायस जेलों में बंद ऐसे मुल्जिमान के लवाहिकीन भी परेशान हैं, जिनकी जमानत की दरख्वास्तें अदालतों में ज़ेर समाअत हैं। तालीमी सरगर्मियों पर एक नजर सिटी तालीम में। लाहौर ग्रामर स्कूल के तलबा ने गैर सरकारी तंजीम पर्वत फाउंडेशन के ज़रिए तमाम चिड़ियाघर का दौरा किया और माहौलियात से मुतालिक लोगों को आगाही फ्राहम की। 17 तलबा तलिबात ने 3 रोज़ा इंटर्नशिप के तहत चिड़ियाघर में सफाई सुथराई और जानवरों की हिफाजत से मुताल्लिक खदमात अंजाम दी। तलबा ने चिड़ियाघर में जगह जगह बिखरे शॉपिंग बैग्स
اور कचरा इकट्ठा करते हुए शहरियों को माहौल साफ रखने से मुतालिक आगाही दी और चिड़ियाघर के अहाते में सिगरेट पीने वालों की हौसला शिकनी की। तलबा ने अपने हाथों में माहौलियात से मुतालिक प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे। गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बराए खवातीन समनाबाद में डेंगू के मर्ज से आगाही के लिए सेमिनार का इख्तिताम किया गया। डेंगू आगाही मुहिम की चीफ मोबिलाइजर शाइस्ता परवेज मलिक का कहना है कि कॉलेज से रजाकार भर्ती किए जा रहे हैं। पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बराए खवातीन समनाबाद में मुनक्किद होने वाले सेमिनार में शाइस्ता परवेज मलिक ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। सेमिनार में कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर तस्नीम अख्तर, सोशल वर्क डिपार्टमेंट से शाहिदा रियाज समेत कॉलेज की तालिबात ने भी शिरकत की। सेमिनार के मौके पर तालिबात को डेंगू से मुतालिक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। शाइस्ता परवेज मलिक ने खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत ने डेंगू से निपटने के लिए तमाम इकदाम कर लिए हैं और इस सिलसिले में महकमा सेहत समेत दीगर शोबों को हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। क्या हो रहा है खेल के मैदान में, आप जान सकेंगे सिटी स्पोर्ट्स में। पंजाब स्क्वाश एसोसिएशन ने खिलाड़ियों की तजवीज़ पर लाहौर लीग शुरू करा दी है, जिसमें न सिर्फ कैश प्राइज रखे गए हैं बल्कि खिलाड़ियों को प्रैक्टिस का मौका भी मिलेगा। मजीद तफसीलात जानते हैं आमिर रजा खान की इस रिपोर्ट में। पंजाब स्क्वाश एसोसिएशन में रजिस्टर्ड खिलाड़ियों ने एसोसिएशन को मशवरा दिया था कि ऑफ सीजन में एक ऐसा इवेंट मुनक्कद कराया जाए जिससे खिलाड़ियों की मैच फिटनेस भी बरकरार रहे और उनको इंटरनेशनल म्यार की प्रैक्टिस भी मिले। इस मशवरे पर लाहौर लीग का इनेकाद किया गया है, जिसकी इनामी रकम 1 लाख रुपए से जायद रखी गई है। टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी मोहम्मद इमरान के मुताबिक इस इवेंट के लिए स्पॉन्सरशिप भी मिल गई है। सबसे बड़ा फायदा ये कि जूनियर को सीनियर के साथ खेलने का मौका मिल रहा है और इस लीग का जो सबसे बड़ा फायदा आज हो रहा है वो ये है कि अभी इस पाकिस्तान में इंटरनेशनल लेवल के मैच नहीं हो रहे। पहले रोज होने वाले मैचेस में साकिब यूसुफ, शहराज सलीम, अहमद फरीद, अहमद अमीन, आकिब हनीफ, नकाश शाहिद, शुएब हसन और खवातीन के इवेंट में मुकद्दस ने कामयाबी हासिल की। खिलाड़ियों का कहना है कि इस लीग से सबसे ज्यादा फायदा उन्हें हो रहा है। ये बहुत अच्छा है जूनियर प्लेयर्स के लिए भी, ताकि उनको मैचेस मिलेंगे, सीनियर्स के साथ खेलने के लिए मौका मिलेगा। काफी अर्से से इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स नहीं हो रहे, जिस वजह से कि आप देखें कि लड़कों को एक्सपोजर नहीं मिल रहा और इसी वजह से ये जो है ना इस लीग का आगाज किया गया है। ये लाहौर लीग बड़ा जबरदस्त है, जूनियर प्लेयर्स को मौका मिल रहा है सीनियर्स के साथ खेलने का, तो ये बड़ी एक एप्रिसिएशन है उनके लिए। लाहौर लीग का आइडिया अनोखा भी है और सूदमंद भी। इस लीग की कामयाबी के बायस PSA इसे साल का रेगुलर इवेंट बनाने के बारे में सोच रही है। कैमरामैन जाहिद शफी के साथ आमिर रजा खान, सिटी 42। लाहौर रीजन क्रिकेट एसोसिएशन के ज़ेर तमाम जारी अंडर 16 लीग में ईस्ट जोन वाइट्स ने मुसलसल चौथी कामयाबी समेट ली। मॉडल टाउन क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए मैच में ईस्ट जोन वाइट्स ने नॉर्थ जोन वाइट्स को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। नॉर्थ जोन वाइट्स ने पहले खेलते हुए मुकर्रर 40 ओवर्स में 10 विकेटों के नुकसान पर 110 रन बनाए। हमजा मलिक 23, अहमद हसन और मोहम्मद हसन 17 रन बनाकर नुमायां बल्लेबाज रहे। मद्दे मुकाबल टीम की जानिब से अब्दुल्ला और मोहम्मद अहमद ने 3-3 और रिजवान सिद्दीक ने 2 विकेट हासिल किए। जवाब में ईस्ट जोन वाइट्स ने मतलूबा हदफ 20वें ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर हासिल करके मैच अपने नाम कर लिया। मोहम्मद जरियाब 38 और अनस अकरम 34 रन बनाने में कामयाब हुए। हारने वाली टीम की जानिब से वाहिद विकेट मोहम्मद अब्दुल्ला ने हासिल की। सिटी 42 के न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। हमारी ऑनलाइन नशरियात के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट cityforytwo.tv। जानते रहिए शहर की सब बातें।